Lord, look upon these servants of yours who wish to dedicate their lives to you today in the presence of your church by professing the three vows. In your love, grant that their way of life may bring glory to your name and further your eternal plan of redemption among all the peoples of the earth. We ask this through Christ our Lord. Amen. Most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, we gather here in your presence and in the sight of your holy people to dedicate ourselves to you by the vows of consecrated chastity, evangelical poverty, and apostolic obedience. we Make this offering of ourselves to you, Father, through Jesus Christ and His Spirit, in the missionary service of the gospel, the good news of salvation. may we By our lives, proclaim your kingdom, a kingdom of justice, peace, and love, that all peoples might come to know you and acknowledge you as the one true God. it is In this spirit, that I, Ye Tomin Raj, that I, Nandet Rajesh, that I, Matthew Palambil Brynid Lawrence, that I, Jojo Hilarious, solemnly promise you, Father, Son, and Holy Spirit, to live for 1 year, chastity, poverty, and obedience, according to the constitutions of the Society of the Divine Word. I make these vows before you, Father Xavier T, as the representative of the Superior General and in the presence of this community. it is In this spirit, that I, J. Divya Prasant, that I, S. Christie, that I, S. Stephen Babu, that I, Lakra Anand, solemnly promise you, Father, Son, and Holy Spirit, to live for 1 year, chastity, poverty, and obedience, according to the constitutions of the Society of the Divine Word. I make these vows before you, Father Xavier T, as the representative of the Superior General and in the presence
of this community. It is in this spirit that I, Gom Salista Clifton, that I, K. Joseph Bhaskar, that I, Mohta Pradeep, that I, D'Souza Avinash Derrick, solemnly promise you, Father, Son, and Holy Spirit, to live for 1 year, chastity, poverty, and obedience, according to the constitutions of the Society of the Divine Word. I make these vows before you, Father Xavier T., as the representative of the Superior General and in the presence of this community. Holy Spirit, Of Christ, come down upon us today and fill us with your strength. Bless us with your gifts, now and forever. Amen. Receive, my brothers, the constitutions of the society, according to which your life will henceforth be fashioned. If you embrace them with cheerful hearts and fulfill their precepts with fidelity, you shall see the Holy Triune God in the glory of all his saints. To him be glory now and forever. Amen. Receive, my brothers, these images of the Holy Spirit and the Sacred Heart of Jesus. May you live as sons of the Holy Spirit, filled with his love, so that the heart of Jesus may live in your hearts. Amen. Amen.
Jesus Christ, through cross and resurrection, in suffering and joy. Stand by Jesus, we live together as brothers from many cultures. We pass over to be with others, offering and receiving good news. With respect, understand, compassion and love. Led by the Spirit we enter, joyfully full of hope. We so shall become one with all people, with those in the frontiers of our faith and the margins of society. Stand by Jesus, we live together as brothers from many cultures. We pass over to be with others, offering and receiving good news. With respect, understand, compassion and love. And so we witness and help to build a loving communion of all humanity, and a communion of humanity with the triune God who loves us. Stand by Jesus, we live together as brothers from many cultures. We pass over to be with others, offering and receiving good news. With respect, understand, compassion and love. With respect, understand, compassion and love. पवित्र बाइबल जीवंत ईश्वर का वचन और उस दृढ़ प्यार का संदेश है जिसे स्वयं हमारे प्रभु यीशु ने हमें दिया है। हम इस बाइबल के साथ हमारे संस्था के मिशन को भी चढ़ाते हैं। हे प्रभु, हमें सही मार्ग दिखला और आपके विश्वस्त सेवक बने रहने में हमारी सहायता कर। हमें अपनी शक्ति और बल प्रदान कर, जिससे हम आपके जीवनदायी वचनों को दुनिया के कोने कोने में सर्वत्र फैला सके। हे प्रभु, हमारी भेंट स्वीकार कर। मोमबत्ती। हे प्रभु, हम आपको यह जलती हुई मोमबत्ती चढ़ाते हैं जो हमारे जीवन का प्रतिरूप है। जिस प्रकार यह स्वयं को जलाकर हमारे लिए अंधकार को दूर करती है और हमारे चारों तरफ रोशनी फैलाती है, उसी प्रकार हे प्यारे प्रभु, आप हमारे जीवन को और भी प्रकाशमान बनाइए ताकि हमारा यह जीवन दूसरों के लिए उम्मीद, खुशी और आशा की एक नई पहल बन सके। हे प्रभु, हमारी भेंट स्वीकार कर। पौधा। हे पावन प्रभु, हम आपको यह पौधा चढ़ाते हैं जो नया जीवन
और खुशहाली का स्वरूप है। यह आपकी अपार दया और अपने धैर्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बड़ा होने पर यह फल फूल छाया और नम्रता पूर्व सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। उसी प्रकार हे दयालु प्रभु, हमें नम्र और दयालु बनाइए। हम चाहे जो भी कार्य करें, कितने ही काबिल बन जाए, लेकिन हमेशा अपने पैर जमीन पर बनाए रखे, इस नन्हे पौधे की तरह। इस पौधे की तरह हमारे हृदय को विनम्र, दयालु और प्रेममय बनाइए। हे प्रभु, हमारी भेंट स्वीकार कर। बहनों और बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी यह भेंट ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रथम व्रत धारण का समारोह मनाते हुए हम तुझे जो भेंट और प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं उन्हें ग्रहण कर तेरी कृपा से इन सेवकों की यह प्रथम भेंट उत्तम फल उत्पन्न करे। यह हमारी विनय है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुमारी मरियम के गर्भ से अति स्वच्छ सुंदर पैदा हुए। इन्होंने हृदय के निर्मल जनों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुमारपन का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसलिए हम स्वर्ग के दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पिता तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा अपराध पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखों, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ, विशेष करके हमारे धर्म संघ के संतों के साथ हमें भी ईश्वर के आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, धर्माध्यक्ष दुरैराज, सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलिसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर।
हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, विशेष करके हमारे परिवारों से परलोक सिधार चुके सब लोगों को, विशेष करके इन